everyone. In our previous video we have studied about connective tissue and today we are going to study about muscular tissue and nervous tissue. So first of all we will learn about muscular tissue. Muscular tissue or muscle tissue. So this tissue is made up of elongated and large size cells and these cells are called muscle cells or muscle fibers. Muscle tissue और muscular tissue elongated और large size cells से बनता है, इसीलिए इन cells को muscle cells या muscle fiber भी बोलते हैं. And this tissue causes movement. All types of movement which happens in our body, it is due to muscular tissue. And you know, this tissue is made up of special protein, contractile protein. Contractile protein which causes contraction, जिसमें contraction होता है. तो ये जो special proteins होते हैं, इनमें contraction और relaxation होता है which causes movement, जिसकी वजह से movement होती है. Like movement of our body in our limbs, हमारे हाथ पैरों से जो movement हो रही है, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो this movement is also occurs due to special proteins, जिसमें contraction और relaxation होता है. And this protein can change its shape and arrangement. And you know, movement of internal organs like heart, हमारी heart में जो movement हो रही है because it beats continuously, और जो alimentary canal है इसमें movement हो रही है. We eat food through our mouth and from mouth it goes to food pipe and from food pipe it goes to stomach and from stomach small intestine. तो जो internal organs में movement हो रही है, this movement also happens due to muscular tissue. And you know, this movement is caused by special protein, special contractile protein, जिसमें contraction और relaxation होता है, जिससे movement होती है. So on the basis of its location, structure and function, this tissue is of three types. Muscle tissue or muscular tissue is of three types: striated muscles, smooth muscles or cardiac muscles. So these are the three types of muscular tissue. Muscle cells are arranged in parallel arrangement and due to this they work together effectively. जो muscle cells होती हैं ये parallelly arranged होती हैं और इस वजह से ये एक साथ बहुत effectively काम करती हैं. So muscle fibers, they are of three types: striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. So let's study about striated muscles. These muscles are also known as striped, skeletal और voluntary muscles. देखिए इन muscles को हम striped muscles, skeletal muscles और voluntary muscles भी बोलते हैं. These muscle fibers show alternate dark and light stripes और bands, या फिर इन bands को हम striations भी बोलते हैं. That is why they are called striped muscles. देखिए इन muscle fibers में you can see in the picture, they show dark and light bands. देखिए इनमें dark और light bands आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए इनको हम striped muscles कहते हैं. Since these muscles are attached to bones and are responsible for body movements, that is why they are called skeletal muscles. देखिए ये जो muscles होती हैं striated muscles, ये bone से attached होती हैं, जिससे बॉडी में मूवमेंट होती है, क्योंकि बोन्स एंड मसल्स दे वर्क टुगेदर इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर विच कॉजेज मूवमेंट, जिससे मूवमेंट होती है. तो इसीलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं. एंड लास्टली दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, सो दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. और ये जो मसल्स होती हैं ये मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा से काम करती हैं. जैसे आप देखिए कोई भी वॉलेंट्री मूवमेंट जो हम अपनी मर्जी से कोई भी काम करते हैं, हम कहीं जा रहे हैं या सपोज वी आर लिफ्टिंग एनीथिंग और कुछ भी नेक की मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट जो हमारी विल से होती हैं वहाँ पे स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट. और इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं दीज सेल्स आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएट. मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. एंड इट्स न्यूक्लियाई आर पेरीफेरल इन पोजिशन. यू कैन सी इन द पिक्चर. इन मसल फाइबर्स में देखिए न्यूक्लियस आपको किनारे की तरफ को दिखाई देगा, इसी को हम बोलते हैं पेरीफेरल इन पोजिशन. एंड दीज मसल्स अकर इन मसल्स ऑफ लिम्स, फेस, बॉडी वॉल एंड नेक. ये जो मसल फाइबर्स हैं ये हमारे लिम्स में, हाथों और पैरों में, फेस में, बॉडी वॉल एंड नेक में प्रेजेंट होते हैं. Now next type of muscle fibers are smooth muscles.
These are also known as unstraited और involuntary muscles. इन muscles को हम unstraited और involuntary muscles भी बोलते हैं. Smooth muscles do not work according to our will, so they are also called involuntary muscles. देखिए जो स्मूथ मसल्स होती है इनमें कॉन्ट्रैक्शन हमारी मर्जी से नहीं होता क्योंकि ये मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड involuntary muscles. For example, the movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels. These are involuntary movements. देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट हो रही है लाइक हम लोग खाना खाते हैं वी ईट फूड सो वी जस्ट swallow it and afterwards where food goes we do not know. Like हमने swallow किया उसके बाद food it reaches to stomach एंड आफ्टरवर्ड्स इन इंटेस्टाइन. तो क्या हमें पता चल रहा है कि कब हमारा फूड स्टमक में है और इंटेस्टाइन में है और जो उनमें मूवमेंट हो रही है वी कैन नॉट रियली स्टार्ट और स्टॉप देम. हम इन मूवमेंट्स को ना ही स्टार्ट करते हैं और ना ही हमारी मर्जी से बंद होती है. सो दीज आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड दीज मूवमेंट्स अकर ड्यू टू स्मूथ मसल्स एंड दीज मसल्स आर फाउंड in the iris of the eye, iris colored part of the eye, and in ureters and in the bronchi of the lungs. Smooth muscle cells are long with pointed ends, spindle shaped. देखिए ये जो मसल सेल्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं और पॉइंटेड एंड्स, इसीलिए इनको हम स्पिंडल शेप्ड भी बोलते हैं. एंड यूनिन्यूक्लिएट, इनमें केवल एक न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड. एंड दीज मसल्स डू नॉट बेयर bands or striations, hence they are called unstraited muscles. देखिए इन मसल फाइबर्स में कोई भी डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते हैं या स्ट्रेशंस नहीं होते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स. नाउ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स अकर इन दी हार्ट. कार्डियक मसल्स केवल हार्ट में होती हैं, हार्ट की वॉल्स में. एंड दीज मसल्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स. ये मसल फाइबर्स दोनों मसल फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स के भी और स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. दीज मसल्स हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स. देखिए स्ट्रेटेड मसल्स में भी स्ट्रेशंस थे एंड दीज मसल फाइबर ऑल्सो हैव स्ट्रेशंस, डार्क एंड लाइट बैंड्स. एंड हार्ट मसल सेल्स दे आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट. ये सिलिंड्रिकल है, स्पिंडल शेप्ड नहीं है लेकिन ब्रांच्ड है एंड इनमें केवल एक न्यूक्लियस है. These are uninucleate and these muscles are involuntary, but ये muscle fibers involuntary हमारी will से काम नहीं करते हैं. And cardiac muscles they contract and relax rapidly, rhythmically and tirelessly throughout life. देखिए cardiac muscles इनमें भी contraction होता है, relaxation होता है, बहुत तेज़ी से होता है लेकिन rhythmically होता है और ये बिना थके पूरी लाइफ काम करती रहती है. Since the time of our birth टिल आर डेथ, जब से हम बॉर्न होते हैं और उसके हमारी डेथ तक ये मसल्स बिना थके टायरलेसली काम करती रहती हैं. एंड वन मोर थिंग, स्ट्रेटेड मसल्स इनमें हमें इन मसल्स में थकान होती है. देखिए जो भी हम दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं हम थक जाएंगे, लेकिन जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है जैसे डाइजेशन है या फिर और भी इंटरनल मूवमेंट्स है उनमें हमें थकान हमें नहीं पता चलती है क्योंकि इनवॉलेंट्री मसल्स दे डू नॉट टायर्ड, बट कार्डियक मसल्स ऑल्सो दे डू नॉट टायर्ड. लेकिन जो वॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारी विल से काम करती हैं तो उनमें हमें थकान महसूस होती है, लेकिन कार्डियक मसल्स दे वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ टायरलेसली. Now let's study about nervous tissue. Nervous tissue is made up of nerve cells और nerve cells या फिर न्यूरॉन. नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं. सो इन दिस टिश्यू ऑल द सेल्स possess the ability to respond stimuli. Stimuli is called change in environment. देखिए when bright light falls in our eye, our eyes gets closed, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं. तो bright light is stimulus and closing of eye it's response. And whenever we touch any hot object, so we just withdraw our hand. So withdrawal of our hand, this is respond, and hot object it is stimuli. So in this tissue all the cells possess the ability to respond stimuli, and this tissue is made up of nerve cells
and nerve cells are also called neurons. So let's study the structure of neuron. So this is the diagram of neuron. And cells of nervous tissue means neurons, they are highly specialized for being stimulated and transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. ये जो nerve cells होती है बहुत ही specialized cells है, क्योंकि ये stimulus जो है उसको बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट करती हैं हमारी बॉडी में, विद इन द बॉडी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये सब नर्वस टिश्यू से बनी होती हैं. एंड न्यूरॉन, इट हैज़ 3 parts. साइटोन. So first part is cyton and we also call it cell body. And cell body, it has nucleus and cytoplasm. इसमें nucleus और cytoplasm होता है. And now second part is dendrite. These are short branched hair-like extension which arises from cell body. अब देखिए सेल बॉडी में से, साइटोन में से हेयर लाइक पार्ट अराइज हो रहे हैं और इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स. एंड नाउ थर्ड पार्ट इज एक्सॉन. Each neuron has a single long extension which is called axon. देखिए आपको एक लॉन्ग पार्ट आपको न्यूरॉन में दिखाई दे रहा होगा. तो ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, एक्सटेंशन, लॉन्ग एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन. और इसकी टर्मिनल पोजीशन पे देखिए फाइन ब्रांचेस हैं और इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स. दीज आर कॉल्ड नर्व एंडिंग्स. एंड एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग. एक नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है. एंड एक्सॉन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर्स. एक्सॉन्स को हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं. मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व. और बहुत सारे नर्व फाइबर्स आपस में जुड़कर एक नर्व फॉर्म करते हैं. एंड द सिग्नल दैट पासेस अलॉन्ग द नर्व फाइबर, इट इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स. और जो नर्व फाइबर्स में सिग्नल पास होता है उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू. और नर्व इम्पल्स के द्वारा ही हम अपनी मसल्स से मूवमेंट करते हैं. जो भी मूवमेंट होती है, क्योंकि मसल्स और बोन्स ये सब आपस में जुड़ करके मूव करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट होकर जब काम करते हैं तभी मूवमेंट होती है. सो द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व and muscle tissue is fundamental to most animals, and this combination enables animals to move rapidly in response to stimuli. For example, withdrawal of leg when stepped on a pointed object while walking barefoot. देखिए जब भी कभी आप barefoot होते हैं, नंगे पैर अगर आप चलते हैं, तो अगर आपका पैर किसी पॉइंटेड, किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे पड़ जाता है तो तुरंत अपना पैर पीछे करते हैं. क्यों? क्योंकि स्किन इट्स अ सेंस ऑर्गन. तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं सब में नर्व सेल्स होती हैं जो कि स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करती हैं. जो भी एनवायरनमेंट में चेंज है उसके लिए रिस्पॉन्स करती हैं. तो जैसे ही हमने पैर रखा, नर्व सेल्स ने बताया दिस इज शार्प, तो तुरंत मसल्स में मूवमेंट हुई और हमने अपना पैर पीछे कर लिया. So this type of movements are highly coordinated. Nervous tissue and muscular tissue, they work very rapidly and in a very coordinated manner.